अच्छा, एक गाना गाया आपने, वायरल हो गई आप, देश के प्रधानमंत्री ने आपको अप्रिशिएट किया, क्या फीलिंग थी उस टाइम पे? Actually, like it was a great feeling, like बहुत ज़्यादा unreal and profoundly humbling था, because like एक like it's an honor. I never imagined of achieving this soon. Like मुझे पता था कि मेरा content जो है it's all about promoting a multilingualism of India and creating a unity among the people. So like मुझे पता था कभी ना कभी तो मेरा कंटेंट जो है थोड़ा आगे बढ़ेगा एंड देन पीपल विल नोटिस अबाउट इट, बट इतना जल्दी वो भी खुद प्राइम मिनिस्टर मुझे ऐसा नोटिस करेगा एंड अप्रिशिएट करेगा बोल के मैंने कभी नहीं सोचा था. And like for an independent content creator like me, especially one from a small state like Nagaland, this kind of recognition validates years of efforts. And more importantly, it is a massive validation for the mission itself, my mission itself, that it shows that the message of national unity and cultural respect is resonating at the highest levels. And so, yeah, I'm so much glad for that. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ये जो आपका इंटेंशन है ना, वो प्योर था, शायद इसीलिए बात वहां तक पहुंच गई जहां पहुंचनी चाहिए थी. कौन सा भजन गाया था आपने? हमारे दर्शकों के लिए गा दीजिए. Yeah, sure. I would love to do that because वो छठी मैया का गाना की वजह से ही मैं अभी आप लोग के साथ इतना अच्छा conversation कर रहा हूँ. So yeah. गावे में पड़े मोरे मैया, छठी मैया दोहारे समान, छठी मैया दोहारे समान. Thank you. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अच्छा, हिंदी तो चलिए समझ में आता है, भोजपुरी में आपको इतना इंटरेस्ट क्यों आया? कैसे सीख गई आप? Like I actually like हिंदी में भी मैं पूरा फ्लुएंट हूँ बोल के नहीं बोल सकते हैं because I'm still in a learning stage. आप लोग सुन ही रहे हैं मेरा हिंदी. तो yeah, and as for Bhojpuri, I have a bit of a special connection. Like my connection is my sincere desire to connect with and celebrate with the culture of Bihar. So like this desire was nurtured by my close friend जो कि मेरा अच्छा दोस्त है जो कि already वो बिहारी है. And she has been instrumental in teaching me about her tradition, sharing a bit of the language, and then even introduced me to the Bhojpuri movies. So yes, जब ये सेक्रेड छठ पूजा का जब मैं गाने के लिए लिया था, it was like with an intensive practice, research, and it was with my friends' heartfelt coaching that I was able to capture the right pronunciation as well as this most importantly the deep connection that is required to the emotion, that deep emotion that is required to sing it respectfully. So yeah, my friend I have a special connection with the Bhojpuri. तो आपकी दोस्त ने आपको छठ पर्व क्यों मनाया जाता है ये बताया आपको? Chhat Parv, like it's a kind of praying to the nature and respecting the nature. It's all about nature को worship करना. right. सनातन धर्म में इतना इंटरेस्ट, मैंने कई बार, मैं आपके इंस्टाग्राम पे आपको स्टॉक कर रही थी जब आपका इंटरव्यू करना था, तो मैंने देखा बड़ा आप ट्रेडिशन को फॉलो करती हैं. हम देख रहे हैं कि मॉडर्नाइज होने के साथ साथ लोग अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, आप पकड़ रही हैं. क्या वजह है? Actually, ये इंस्पिरेशन जो है it comes directly from my roots as well as from my experiences. जो कि like मेरे नागालैंड में एक 17 ट्राइब्स रहता है एंड देन वी ऑल फॉलोज आवर सेलिब्रेट आवर खुद का एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है. एट द सेम टाइम अपना अपना कल्चरल अटायर है. तो लाइक ये सब चीज़ जो है मुझे मतलब इट टॉट मी अबाउट द डीप वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी. एंड लेटर ऑन व्हेन आई मूव टू असम, which is also known as mini India, I was completely mesmerized by how beautifully everyone respected each other's culture. And this inspired me to learn more about the rest of the nation. And then like जब मैं other cities में travel करने गया था for my excursion from my college, and I personally and sadly faced a bit of racism and I was treated like a foreigner in my own country, which I didn't like it personally. तो उस टाइम में like
वो मैंने लेकिन नेगेटिवली नहीं लिया, मैंने पॉजिटिवली लिया एंड आई वाज लाइक दैट्स मेरा मिशन जो है तब मेरा शुरू हुआ, दैट when it takes into you are truly solidified and like if तब मैंने सोचा कि if I can start to embrace the faith, culture and beautiful traditions of the others like the Chhat Mahaparv like I did, it's like आप लोग क्यों नहीं कर सकता है? So like it's like an invitation for the rest of the India to see and respect our cultures in return. So yeah, and that's it. Yeah. अच्छा मिसी, आपने कहा कि आपने रेसिज्म फेस किया, ये अकेले आपकी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी लोग इस तरफ आते हैं वो बहुत से लोग उनमें से ये चीज फेस करते हैं। क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या है? नॉर्थ ईस्ट पीपल को ऐसा फेस हो रहा है बोलने से लाइक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर फेशियल स्ट्रक्चर एंड आवर स्मॉल आईज एंड ऑल। तो ये सब स्ट्रक्चर की वजह से हम लोग को ज्यादा फेस करने मिलता है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इन द नॉर्थ ईस्ट डजंट नो हाउ टू स्पीक इन हिंदी एंड दैट्स आल्सो द अनदर रीजन एंड लाइक वो लाइक अभी ऐसा रेसिज्म फेस नहीं होता है बोल के लाइक आई पर्सनली थिंक कि मतलब ऐसा नहीं होता है बोल के हम नहीं मानेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सोशल मीडिया में ऑब्वियसली मैं भी अपडेट रहता हूँ तो मैं भी देखा है। अभी भी होता है? या अभी भी आपको फेस करना पड़ता है? ओहो। या अभी भी होता है। अभी भी मैं अगर दूसरा देश लाइक दूसरा स्टेट में घूमने जाऊंगी तो फिर मेरे पास आएगा यू लुक लाइक अ फॉरेनर, कैन आई टेक अ सेल्फी विथ यू एंड सो ऑन। सो या इट्स नेचुरल लाइक हो गए। सो या अच्छा, नागालैंड से एक नेता आते हैं, एक पॉलिटिशियन है तेमजन इम्ना अलोंग, तो उनका एक बार एक स्टेटमेंट आया, अगर आपने सुना हो, उन्होंने कहा कि मेरी इतनी छोटी छोटी आंखें हैं तो मुझे लोग पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, लेकिन बिल्कुल ये बात सच है, किसी नेता को नहीं छोड़ा जा रहा तो फिर आम लोगों को कैसे छोड़ा जाएगा? ये नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली मेरा मानना है। Oh my God, it's so funny. So I'm so sorry. Like yeah, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी एक नेता का सब हो सकता है तो मैं तो एक सिटीजन है या सो लाइक इट्स आपसे तो किसी ने नहीं पूछा ना कि मिसी तुम क्या क्या खा सकती हो? नहीं या कोई मतलब ऐसा तो मतलब आज तक मुझे नहीं पूछा यार। अच्छा, आपकी जो बर्थ प्लेस है वो नागालैंड ही है? या नागालैंड। और असम में आप पढ़ाई के लिए आई हैं? जी जी। कितने टाइम से आप असम में रह रही हैं? असम में करीबन मेरा 7 साल हो चुका है एंड 8 साल रनिंग चल रहा है। ओके। असम में जो आप एटमॉस्फेयर देखती हैं वो कैसा देखती हैं अगर हम नागालैंड से कंपेयर करें तो? लाइक कंपैरिजन व्हेन इट कम्स टू लाइक एटमॉस्फेयर लाइक ये देखा है कि देखो मैं नागालैंड में छोटा टाइम में रहा है एंड देयर और मैं असम में आया जब मैं बड़ा हुआ तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द पर्सपेक्टिव दैट आई सी सिंस चाइल्डहुड एंड फ्रॉम बीइंग लाइक अडल्ट होने के बाद जो देखने का पर्सपेक्टिव जो है कंप्लीटली अलग है। तो व्हेन आई सी कि नागालैंड में जो सब लोग एक दूसरे का लाइक कम्युनिटी अलग अलग है तो सब लोग अपना ट्राइब्स को बहुत ज्यादा ऐसा प्रोटेक्ट करके एंड रिस्पेक्ट करता है। सेम गोस टू लाइक असम में लाइक बस यही डिफरेंस है कि असम में लाइक मेन स्ट्रीम का लोग भी होता है, फिर यहाँ सब जगह से मतलब यहाँ में है, इसलिए मिनी इंडिया बोलता है उसको। तो लाइक यहाँ पे ऐसा है कि सबका ओवरऑल देखने मिलता है मुझे, तो इसी की वजह से मेरा पर्सपेक्टिव भी मतलब चेंज हुआ है अकॉर्डिंगली। सो या दैट्स ऑल अबाउट। असम के सीएम का नाम पता है आपको? या इट्स हिमंता बिस्वा शर्मा। आई एडमायर हिम सो मच। क्या क्या अच्छा लगता है हिमंता बिस्वा शर्मा के कामकाज में? लाइक वो मतलब सब लोग उसको बहुत पसंद करता है, असम का लोग भी लाइक उसको मामा जी बोल के मामा जी, राइट। या एंड लाइक मुझे उसका सबसे ज्यादा चीज अच्छा लगने वाला यही है कि लाइक वो कभी भी मतलब ना बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन, कभी भी ऐसा कहीं में आता है इनविटेशन देता है तो वो कभी लाइक आगे किसी को भी ऐसा मतलब डाउन ट्रीटेड नहीं करता है, बहुत ज्यादा अच्छा से उसका बिहेवियर जो है टुवर्ड्स द सिटीजन बहुत अच्छा से ट्रीट किया जाता है। एंड आई नॉट पर्सनली आई हैवंट मेट हिम पर्सनली बट या जब सोशल मीडिया सब में देखता है तो मुझे ऐसा फील होता है एंड आई रियली एडमायर हिम फॉर दैट। बिल्कुल। अच्छा मिसी, आप जिस तरीके से काम कर रही हैं, जो कंटेंट आप बनाती हैं, जितना मैं समझ पाई हूं आप यूनिटी को प्रमोट करती हैं कि सबको एक समान तौर पर आगे बढ़ना चाहिए, लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि हमारे भारत में रहने वाले कुछ लोगों को हिंदी से प्रॉब्लम हो जाती है, उन लोगों को क्या कहेंगे?
like it's not ki, like, Hindi itself is not an official language actually, right? Like इंडिया का पूरा ऑफिशियल लैंग्वेज ऐसा है बोल के भी नहीं है, बिकॉज लाइक जैसे कि तमिल का ये जब साउथ में जाता है तो लाइक वहाँ पे तमिल जो है वो सब ऑफिशियल लैंग्वेज है, स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज, एंड व्हेन इट कम्स टू नागालैंड वी इंग्लिश इटसेल्फ इज ऑफिशियल लैंग्वेज. सो लाइक हिंदी से प्रॉब्लम होना, लाइक मेरा ये मानना है ना कि हाँ ठीक है, टू कोप अप विद ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो लाइक इसमें मेरा ऐसा पर्सनल, मतलब मैं आपसे ये रिव्यू लेना चाह रही हूँ कि महाराष्ट्र में आप देखिए मराठी बोलते हैं लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीच में से कुछ वीडियोस सामने आए जिनमें हिंदी बोलने वालों को मारा गया, पीटा गया कि आप हिंदी कैसे बोल रहे हो. अब बताइए भारत में रह रहे हैं तो हिंदी से इतनी नफरत क्यों? मेरे कहने का मतलब ये है, आप मराठी भी बोलिए, हिंदी भी बोलिए, तमिल भी बोलिए, सब बोलिए, ये मैं पूछना चाह रही हूँ. ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, विच इज लाइक सबका ऊपर में एक होता है ना, अपना अपना सेंटिमेंट लेके बैठा रहता है कि लाइक आपको ये मेरा ये मानना है कि हिंदी भी जानना चाहिए, इंग्लिश भी जानना चाहिए, अपना भाषा को भी, अपना कल्चर को भी प्रिजर्व करके रखना चाहिए, लेकिन सबका माइंडसेट ऐसा होगा बोल के हम भी नहीं सोच सकते, जरूरी नहीं है सबका ऐसा होगा बोल के. सो या आई डोंट हैव कमेंट्स फॉर दैट, आई एम सॉरी. ओके, नो इट्स ओके. आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आगे क्या सोचा है? लॉयर ही बनना है या फिर अब तो कंटेंट क्रिएटर बन गई हैं तो अब इसी फील्ड में आगे जाना है? Like I'm going to take both with me in future, because like it's like surprisingly it's a great, you know, my law degree and my content has been interconnected with each other surprisingly. Like आप लोग भी सोच रहे होगा ये कैसे कनेक्ट, हाँ कैसे कनेक्ट? एग्जैक्टली. तो ये देखो, law is fundamentally about establishing justice and equality in the society. Okay. And my content is about building emotional awareness and unity among the society. So this is how they are interconnected with each other. And I have, my future plan is to continue using my platform to amplify the positive messages, as well as, you know, using my legal knowledge to contribute in creating a more equitable and respectful society. Yeah. So, okay. अगर देश के प्रधानमंत्री को अभी कोई मैसेज देना हो आपको, क्या पता इस वीडियो के माध्यम से चला जाए, क्या कहेंगी? Yeah, I would love to do that. Like to the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, I would simply like to say a heartfelt thank you for recognizing the sincerity of a small voice from the Northeast, that is from Nagaland. And the moment you said like Nagaland की बेटी, वो moment जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक heart warming moment था, और मुझे कैसा फील हुआ है दिल से, वो मतलब शब्दों में बयां नहीं कर सकता है. एंड दैट मोमेंट यू did not only you know, inspire me, but also to the entire you know, content creator, a young creator like me. So yeah, thank you so much from the bottom of my heart. चलिए कोई बात नहीं. बहुत बहुत शुक्रिया मिसी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए. उम्मीद है जो कंटेंट आप बना रही हैं वो लोगों तक वैसे ही जाए जैसे आप उसे क्रिएट कर रही हैं, कुछ भी दाएं बाएं ना हो, सब कुछ पॉजिटिव जाए, आप बहुत तरक्की करें. शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. आपको मिसी चिली से हमारी ये खास मुलाकात कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा. बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए NMF न्यूज के साथ.